آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین، میں ہوں سمر ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جوش و خروش سے منایا گیا آج شہر و اطراف میں یونیورسٹی کا 29واں توسیع نام دن۔ جگہ جگہ نکالی گئی ریلیاں، مختلف پروگرامز منعقد، تحریک میں شہید ہونے والوں کو بھی خراج عقیدت پیش۔ PMY گھر کل اسکیم کے تحت درخواست دہی کی میعاد میں اضافہ۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا اعلان، خواہش مند 31 جنوری تک داخل کر سکتے ہیں آن لائن اور آف لائن درخواستیں۔ ریلوے اور پولیس محکمے کے مختلف شعبوں کی کارکردگی کی جانچ کے لیے اورنگ آباد ریلوے اسٹیشن پر کی گئی موک ڈرل۔ اسٹیشن کے احاطے میں لاوارث بیگ کے علاوہ بھجوایا گیا فرضی دہشت گرد۔ ملازمین کی کارکردگی پر اعلیٰ افسران نے کیا اطمینان کا اظہار۔ اور فاضل عدالت کی سخت ہدایت اور پولیس کے چھاپوں کے باوجود شہر میں نائلون مانجے کی خرید و فروخت جاری۔ ممنوعہ نائلون مانجے کی زد میں آ جانے کے سبب ایک بائیک سوار ہوا شدید زخمی۔ خوش قسمتی سے ICU کی سہولت والا ہاسپٹل قریب ہونے سے وقت پر پہنچائی جا سکی طبی امداد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ یونیورسٹی کے توسیع نام دن کے موقع پر توسیع نام تحریک کے جانصاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ایک ریلی نکالی گئی جس میں سمتا سینک دل کے کارکنان بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے اس 29ویں توسیع نام دن کے موقع پر صبح ہی سے کارکنان و شہریان بڑی تعداد میں یونیورسٹی پہنچنے لگے تھے اور اس تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہوگی۔ اس موقع پر منعقد جلسہ عام میں ریاستی وزراء اور مہاوکاس اگھاڑی کے رہنما کی بھی شرکت ہوگی۔ جلسہ عام و ریلی اور تقریبات کے لیے پولیس انتظامیہ نے بھی چاق و چوبند بندوبست تعینات کیا ہے۔ اس سلسلے میں ACP اشوک تھورات نے مزید معلومات دی۔ आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर जो आहे नामविस्तार दिनानिमित्त पोलीस प्रशासनाने योग्य तो बंदोबस्त ठेवलेला आहे। सर्व बाजूनी योग्य बंदोबस्त आहे। तसेच येणारे अनुयायी देखील पोलीस प्रशासनाने ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे आपण त्याचं पालन केलं तर आपल्यालाच त्रास होणार नाही आणि इतरांनासुद्धा त्रास होणार नाही आणि आपण उत्साहात हा जो नामविस्ताराचा जो सोहळा आहे हा आपण साजरा करू शकता आणि योग्य तो बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे। اسی طرح سمتا دل کے ضلع صدر کشور جوبلے نے بھی رہنمائی کی۔ اس طرح توسیع نام دن کے موقع پر مولانا آزاد کالج کیمپس میں بھی مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے جن کو انکم ٹیکس آفیسر پروین پانڈے و صنعت یافتہ یوگا ٹیچر کی سرکردگی میں منعقد کیا گیا۔ شہر پھلمری سمیت تعلقہ بھر میں یونیورسٹی توسیع نام دن منایا گیا۔ اس موقع پر پھلمری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سبھاپتی JP شیجوڑ، دھانورا گاؤں کے سرپنچ شامراؤ دادا سالونکے، پھلمری سماچار کے مدیر سنجے مورے، ریپائی کے تعلقہ صدر اجے گنگاؤ نے، VBA کے تعلقہ صدر راجو پردھا، شہر صدر پھلمری بھگوان گنگاؤ نے اور دیگر کارکنان و عہدیداران بڑی تعداد میں موجود تھے۔ PMY گھر کل اسکیم کے تحت اب خواہش مند افراد 31 جنوری تک آن لائن اور آف لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ AMC انتظامیہ کی جانب سے سرکاری زمین پر اکنامیکل بیکورڈ کلاس کے طبقات کو پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم اربن پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت میونسپل انتظامیہ نے 19 دسمبر سے 20 جنوری تک درخواست دہی کے لیے خصوصی مہم شروع کی تھی جس کے تحت اب تک آن لائن اور آف لائن طریقے سے انتظامیہ کو 18,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ان درخواستوں کی اسکروٹنی کا کام جاری ہے۔ اس مہم کا فائدہ ہر ضرورت مند تک پہنچایا جا سکے۔ اس غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر چودھری نے درخواست دہی کی میعاد میں اضافہ کرتے ہوئے 31 جنوری تک درخواستیں قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میونسپل انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق متعلقہ خواہش مند افراد اب 31 جنوری تک اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ سماجی بیداری اور عوامی تعاون سے ندیوں کی باضابط کاری کی جائے، یہ مشورہ واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر راجندر سنگھ نے دیا۔ سماجی بیداری اور عوامی تعاون سے اکولہ کی مورنا اور اورنگ آباد کی خام ندی کی باضابط کاری کیے جانے پر
वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा ने जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे और उनके मावनीन की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि इसकी तकलीद रियासत महाराष्ट्र के दीगर मकामात और मुल्क की दीगर रियासतों में भी की जानी चाहिए। वाज़ेह है कि नासिक में पानी की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे की जानिब से बुलाई गई चलो नदी को जाएं और नदियों की बाज़ाबतकारी के लिए बुलाई गई मीटिंग में शिरकत की गर्ज से वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा नासिक से औरंगाबाद आए थे। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने अवाम के ताउन से जिला अकोला की मोरना और शहर औरंगाबाद की खान नदी की काया पलट दी। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान की तरबियत देते वक्त उन्हें इस तरह से सोशल कामों की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि 5 साल कबल शुरू की गई नदियों की सफाई मुहिम के मुस्बत नताइज आज देखने को मिले हैं। आस्तिक कुमार पांडे की ये कारकर्दगी काबिल तारीफ और काबिल तकलीद है। इस मीटिंग में तमाम डिप्टी डिविजनल ऑफिसर्स, तहसीलदार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, नगर परिषद और पंचायत समितियों के मुताल्लिका अफसरान शरीक थे। रियासती हुकूमत की मंजूरी और अहकाम के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 123 ओहदों पर नौकर भर्ती की तजवीज़ हुकूमत को भिजवाई है, मगर उसे अब तक हुकूमत की मंजूरी नहीं मिल पाई है। चुनांचे तब तक म्यूनिसिपल इंतजामिया ओहदों के रोस्टर मुकम्मल कर रहा है। रियासती हुकूमत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नए स्टाफिंग पैटर्न और नई ओहदा जाती भर्ती उसूल व ज़वाबित को मंजूरी दिए जाने को 1.5 बरस बीत गया है, लेकिन अभी तक नौकर भर्ती की खुशगवार घड़ी नहीं आई है। नए स्टाफिंग पैटर्न के मुताबिक 900 जायदाद का शुमार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होगा। इन ओहदों पर तकरार करते वक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी 40% अपने हिस्से के खर्च का शुमार करना होगा और अगर इन सभी जायदादों को पुर किया जाए तो ये इस खर्च में इंतहाई इजाफा हो जाना मुतवक्का है। इसी के पेश नज़र इंतजामिया ने इंतहाई ज़रूरी ओहदों की फहरिस्त तैयार की और इसी को हुकूमत को भिजवाया है। 2 रोज़ कबल रियासती वज़ीर आला की बुलाई गई म्यूनिसिपल कमिश्नर्स की मीटिंग में नौकर भर्ती के अहकाम सादिर किए गए। ताहम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भर्ती के लिए अभी तक बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं मिली है और ये मंजूरी विधान परिषद इंतखाबात के ज़ाब्ता इखलाक की मियाद व ख़त्म हो जाने के बाद ही मुतवक्का है। तालुका खुदाबाद के परसवाड़ी में ड्रोन के जरिए फसलों पर दवाई का छिड़काव किया गया और एक किसान के खेत पर ही तजुर्बे का प्रोग्राम लिया गया। जरासीम कश दवाओं के छिड़काव के इस तरीक़ेकार से पैसों, वक्त, पानी और इफरादी क़ुव्वत की बचत होगी। ड्रोन से फवारनी के इस कामयाब तजुर्बे का इनेकाद तालुका खुदाबाद के मज़कूरा गाँव के खेत पर किया गया। इस फवारनी में कुल 12 लीटर पानी में 200 ml दवाई का 10 मिनट से भी कम वक्त में आधा एकड़ खेती पर छिड़काव कर दिया गया। इस तरह किसानों के वक्त, पैसे और पानी की बचत के साथ साथ बर वक्त फवारनी भी इस तरीके से मुमकिन हो सकेगी और फसलों को मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सकेगा। बाद-ए-अज़ा तजुर्बाती प्रोग्राम यही अमूल वर्डे नामी किसान के खेत पर लिया गया, जिसमें गरुड़ा एरोस्पेस कंपनी के राजवीर राय ने किसानों की रहनुमाई की और उन्हें मुफीद मालूमात दी, जबकि बड़ी तादाद में किसान इस प्रोग्राम में शरीक थे। हुकूमत की जानिब से डेपुटेशन पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भिजवाए गए। डिप्टी डायरेक्टर मनोज गर्जे ने गुज़िश्ता रोज़ टाउन प्लानिंग शोबे की डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से चार्ज ले लिया। आया रहे कि मनोज गर्जे 3 रोज पहले ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर रुजू हो चुके थे, ताहम उन्हें टाउन प्लानिंग में चार्ज नहीं दिया गया था। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर अभिजीत चौधरी के ग्रीन सिग्नल के बाद उन्हें मुतालिका शोबे का चार्ज दे दिया गया। टाउन प्लानिंग के इस शोबे पर हुकूमत की जानिब से ही डेपुटेशन पर डिप्टी डायरेक्टर नामजद किया जाता है और पहले अरसे मज़कूरा अफसरान न दिए जाने के सबब इस ओहदे पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसर ही को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा था और फिलवक्त ये जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर A.V. देशमुख संभाले हुए थे। गर्जे के डेपुटेशन के बाद वो पिछले हफ्ते ही रिज्यू भी हो चुके थे। टाउन प्लानिंग के मुलाजिमीन उनका इस्तकबाल भी कर चुके थे, ताहम उन्हें बाज़ाब्ता चार्ज नहीं मिला था। औरंगाबाद डिवीजन के महसूल मुलाजिमीन के लिए मुनक़िद स्पोर्ट्स मुकाबलों में तहसील ऑफिस औरंगाबाद के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। इस कामयाबी पर शहर के मारूफ ताइक्वांडो खिलाड़ी नईम खान व रईस खान ने तहसीलदार विजय चौहान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि महसूल मुलाजिमीन को ज़हनी तनाव से बाहर लाने की गर्ज से हर साल इलाकाई सतह पर इन मुलाजिमीन के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले और सकाफती प्रोग्राम रखे जाते हैं। इस साल ये मुकाबले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर रखे गए थे। इस फेस्टिवल के दौरान तहसील ऑफिस औरंगाबाद की एक टीम फुटबॉल टूर्नामेंट में उतारी गई, जिसमें टीम के खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए
ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लिहाजा तहसील ऑफिस औरंगाबाद की टीम की इस शानदार कामयाबी पर ताइक्वांडो के मारूफ खिलाड़ी रईस खान और नईम खान तहसील ऑफिस पहुंचे और तहसीलदार विजय चौहान को फूलों का गुलदस्ता पेश करके उन्हें मुबारकबाद पेश की। तेजरावजी पाटिल निगम मल्टीपर्पज एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल की 15वीं सालाना गैदरिंग जोशो खरोश से मनाई गई। इस गैदरिंग के तहत मुख्तलिफ कल्चरल और स्पोर्ट्स प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसमें केजी से एसएससी तक के सभी तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश करके तक़रीब का आगाज़ किया गया। 3 घंटों तक मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स के ज़रिए कौमी यकजहती के फ़रोग़ का पैगाम दिया गया। इस प्रोग्राम पर 10वीं जमात के इम्तहानात में पहला, दूसरा और तीसरा मकाम हासिल करने वाले तलबा का मेहमानों के हाथों शानदार इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन व साबिक़ रुकन असम्बली नितिन पाटिल, सोसाइटी के सदर सुभाष निकम, जिला परिषद के प्रभारी दिलीप निकम, संजय गायकवाड़, संदीप चिखले, प्रदीप जगताप, भाग्यश्री औताड़े, सरपंच सविता निकम, प्रिंसिपल हरी जमाले, अरुण निकम और दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। प्रोग्राम की निजामत स्वाति निकम और रोहिणी जगदाड़े ने की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सभी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर कौमी तराना पढ़ाया गया। एग्रीकल्चर और कौमी सेवा योजना के इश्तिराक से शेंद्रा कमलगढ़ में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। अतिया खून अजीम तरीन अतिया है। इसी नजरिए के तहत MGM नाना साहब कदम सराई कॉलेज गांधीली औरंगाबाद और कौमी सेवा योजना रासी यू से मुश्तरका तौर पर शेंद्रा कमलगढ़ में खुसूसी सरमाई कैंप 10-16 जनवरी के दरमियान रखा गया। इस मौके पर 14 जनवरी को ग्राम पंचायत शेंद्रा कमलगढ़ में ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें गांव के नौजवानों और कौमी सेवा योजना के एहलकारों ने खून के अतिये दिए और इस कैंप को भरपूर ताउन हासिल रहा। इस कैंप में गांव की सरपंच पुष्पाताई कचकूरे, नायब सरपंच सरजय राव कचकूरे, देही तरक्याती अफसर सिद्धार्थ शिलके और नामदेव शिलके, राम कचकूरे, संदीप भारसाकड़े और गांव के साकिनान मौजूद थे। कैंप को MGM प्लस गांधीली के डायरेक्टर डॉक्टर सद्दाम पवार व नाना साहब कदम जरई कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NM मस्के की खुसूसी रहनुमाई हासिल रही और सेवा योजना के प्रोग्रामिंग के ऑफिसर किरण जाधव और MGM ब्लड बैंक के जिम्मेदार आशुतोष देव ने कैंप के लिए खास तगवदो की। 14 जानेवारी रोजी या ठिकाणी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। या रक्तदान शिबिरासाठी गावचे सरपंच सौ पुष्पाताई कचकुरे, उपसरपंच सर्जेराव कचकुरे तसेच ग्राम विकास अधिकारी सिद्धार्थ शेळके यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले। तसेच कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी MGM ब्लड बँक व नानासाहेब कदम कृषी महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर निलेश मस्के सर व कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक किरण जाधव यांनी या कार्यक्रमासाठी विशेष मेहनत घेतली। पिछले कई माह से खाली पड़े कांग्रेस पार्टी की ख्वातीन इकाई के शहर सदर ओहदे के लिए गुज़िश्ता रोज ख्वातीन के इंटरव्यू लिए गए। मज़कूरा ओहदे पर तकर्रुर के लिए शहर के गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी की ख्वातीन इकाई की रियासती सदर संध्या सवालाखे की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ और शहर सदर ओहदे के लिए मुलाकातें ली गयी। ताहम इस ओहदे पर तकर्रुरी में ख्वातीन कारकुनान की जानिब से कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और चंद गिनती की ख्वातीन ही मुलाकात व इंटरव्यू के लिए आईं, जिस पर रियासती सदर ने नाराजगी का इजहार किया। आया रहे कि पिछले साल सितंबर के महीने से ख्वातीन इकाई की शहर सदर का ओहदा खाली पड़ा हुआ है। साबिक सदर ने भी अपनी मुख्तसर मियाद के बाद ही ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। आज मुनक़िद मुलाकातों के मौके पर रियासती सदर संध्या सवालाखे ने ख्वातीन को पार्टी के इस्तेकाम, तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की तलक़ीन की और आपसी मतभेद व गठबाजी से परहेज करने की हिदायत दी। इस ओहदे के लिए दीपाली मिसार, वैशाली ताइडे, सिंधु पवार, अनीता भंडारी, प्रेगा खंडले, रेखा राउत, उज्ज्वला दत्त, सरोज जेकम, सुनीता टाइडे व दीगर ने इंटरव्यू दिए। जबकि इस मौके पर पार्टी के जिला सदर कल्याण काड़े, शहर सदर यूसुफ शेख, मृणालिनी देशपांडे, सुरेखा पानकडे व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। या ठिकाणी महिला अध्यक्षाचा राजीनामा बरेच दिवसापासून झालेला होता
आणि महिला संघटन कसं आहे की अध्यक्ष नसलं तर थोडं विस्कळीत होतं. तर या ठिकाणी येऊन महिलांचे इंटरव्ह्यू घ्यायचे होते आणि आत्ताच भारत जोडो यात्राला महाराष्ट्रामधून महिलांचा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग होता आणि हात से हात जोडोचा शुभारंभ आम्ही जालना येथून केला. 4 आणि 5 फेब्रुवारीला पुणे येथे आम्ही एक शिबिर ठेवला आहे. त्याची सुरुवात आम्ही पुण्यावरून करतो आहे आणि महाराष्ट्रभर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही त्याची सुरुवात करतो आहे. हात से हात जोडा हा अभियान जो आहे की ब्लॉक लेवलच्या महिलांपर्यंत पोहोचून महाराष्ट्रामध्ये जे त्यांच्यावर अत्याचार होत आहे, महागाई वाढली आहे, याबद्दल महाराष्ट्रातील प्रत्येक महिला त्या बूथपर्यंत पोहोचणार आहे. औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात की जांच के लिए दहशतगर्दी हमलों पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, इसका रेलवे पुलिस ने डेमो दिया। वाज़ेह है कि मुल्क के अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ मफाद वरस अफराद की जानिब से दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं। उमूमन ये लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और इस जैसे हर हुजूम इलाके को अपनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा रेलवे पुलिस, बम डिटेक्टिव एंड डिस्ट्रॉय स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस महकमे के दिगर शोबों के अफराद कितने चाको चौबंद हैं और ऐसी सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए कितने मुस्तहकम हैं, इसकी जांच के लिए गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर एक डेमो दिया गया और सभी महकमों के अफसरान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस डेमो पर GRPF और वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने भी हिस्सा लिया। इस ज़िम्न में मज़ीद मालूमात पुलिस इंस्पेक्टर साहबराव कामले ने दी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शिरकत के बाद 2 व्हीलर पर घर लौट रहे एक नौजवान के गले में नायलॉन मांझा उलझ जाने के सबब वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ये हादसा जलगांव रोड पर जातवाड़ी रास्ते पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान मुसाबकती इम्तिहान में शिरकत करके घर लौट रहा था कि अचानक नायलॉन मांझे की डोर में वो उलझ गया और उसके समझने तक इसकी गर्दन को जख्मी कर दिया। इस नौजवान ने इस अचानक अफ्तार से बचने के लिए बाएं हाथ से उसने डोर पकड़ ली, जिसकी वजह से उसके बाएं हाथ की उंगलियां भी गहराई तक कट गईं। खुशकिस्मती से वहीं करीब में एक खानगी दवाखाना मौजूद था जिसमें ICU की सहूलत भी थी, लिहाजा इस नौजवान की जान बचा ली गई। आमच्याकडे नायलॉन मांजा आणि अपघात झाल्यामुळे दाखल झालेले आहेत. त्यांच्या गळ्यावर आणि हातावर गंभीर जखमा झाल्या आणि त्यावर काही सर्जरी करावी लागलेली आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे आणि चांगली आहे, पण आमची एक विनंती आहे की कृपया कुणी करून यापुढे नायलॉन मांजा वापरू नये. या सर्व घटनांवरून माझे सर्व नागरिकांना एक नम्र आवाहन आहे की आपण सर्वांनी आपल्या मुलांना तसेच आपण स्वतः सुद्धा नायलॉन मांजाचा दोराचा वापर टाळावा. आपण पतंग जरूर उडवावे मकर संक्रांतीला, परंतु कटाक्षाने आपण सर्व स्तरावर नायलॉन मांजाच्या बंदीसाठी सर्व प्रकारे त्याचा आपण प्रतिबंध कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न करावे. कौमी रोड सेफ्टी वीक की मुनासिबत से पैठन में गाड़ी मालिकान व ड्राइवर्स में बेदारी पैदा की गई। ये सरगर्मी पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार की निगरानी में अंजाम दी गई। ही ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से पैठन के बस स्टैंड हफ्तावार बाजार में कौमी हफ्ता बराए सड़क तहफ़्फ़ुज़ात के ज़िम्मन में गाड़ी ड्राइवर्स के लिए रहदारी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की गई। जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवान ने एडिशनल सुपरिटेंडेंट सुनील लांजेवार की रहनुमाई में ये सरगर्मी अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम की सदारत पैठन के बस डिपो मैनेजर सुहास तड़वे थे, जबकि इंस्पेक्टर किशोर पवार, बस स्टैंड के जिम्मेदार गजानन मड़के, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट अमूल मालूदे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर अमित कड़वे भी इस मौके पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम पर बसों के कंडक्टर ड्राइवर्स को ट्रैफिक के उसूल क़वानीन और तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गई और क़वानीन की पाबंदियों की तलक़ीन की गई और अपनी गाड़ियों की रफ्तार को काबू में रखने और मुसाफिरों और अपनी खुद की ज़िंदगी की हिफाजत से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गई। नीज़ कहा गया कि शराब पीकर गाड़ी हरगिज़ न चलाएं, गैर ज़रूरी और ओवरटेक से बचें, रॉन्ग साइड गाड़ी न चलाएं, हाईवे पर मखदूश मकाम पर गाड़ी पार्क न करें। इसी तरह हफ्तावारी बाजार में भी गाड़ी ड्राइवर्स में बेदारी मुहिम चलाई गई। इसी तरह तालुका खुल्दाबाद के गलेपुर गांव में भी ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान के तहत ट्रैफिक IG पी कुलवंत कुमार सारुंगल, महामार्ग पुलिस की पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनीता जमादार, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दिलीप टिप्परसे व नंदिनी चांदपुरकर की रहनुमाई में यहाँ गलेपुर गाँव के जिला परिषद स्कूल में रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ और मौसर रहनुमाई की गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर।
जोश व खरोश से मनाया गया आज शहर व अतराफ में यूनिवर्सिटी का 29वां तौसीन नाम दिन। जगह जगह निकाली गई रैलियां, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, तहरीक में शहीद होने वालों को भी खराज अक़ीदत पेश। PMY घरकुल स्कीम के तहत दरख्वास्त दही की मियाद में इजाफा। म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से किया गया ऐलान, ख्वाहिशमंद 31 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दरख्वास्तें। रेलवे और पुलिस महकमे के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी की जांच के लिए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर की गई मॉक ड्रिल। स्टेशन के अहाते में लावारिस बैग के अलावा भिजवाया गया फर्जी दहशतगर्द। मुलाजिमीन की कारकर्दगी पर आला अफसरान ने किया इत्मीनान का इजहार। और फाजिल अदालत की सख्त हिदायत और पुलिस के छापों के बावजूद शहर में नायलन मांझे की खरीद फरोख्त जारी। ममनुआ नायलन मांझे की जद में आ जाने के सबब एक बाइक सवार हुआ शदीद जख्मी। खुशकिस्मती से ICU की सहूलत वाला हॉस्पिटल करीब होने से वक्त पर पहुंचाई जा सकी तिब्बी इमदाद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।